Exercise 9.2. Question number 2. Find the sum of natural numbers from lying between 1 and 100 and 1000. 100 and 1000, which are multiples of 5. Isha? Numbers lying between 100 and 1000. Numbers lying between 100 and 1000, which are multiples of 5 are. जो नंबर्स 100 से लेकर 1000 तक है, जो मल्टीपल्स ऑफ 5 है, जरा वो नंबर्स बताओ क्या है। पहला नंबर कौन सा होगा? नहीं, 100 के बीच में जो नंबर्स है, तो 100 इसमें इंक्लूड नहीं करना है, तो पहला नंबर होगा 105, दूसरा होगा 110, 115, 120, so on up to 995, क्योंकि ये लिखा है नंबर्स लाइन बिटवीन। ओके, ये जो सीक्वेंस है आपको लगता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई? द अबव सीक्वेंस is an arithmetic progression. क्यों arithmetic progression है? क्योंकि इसमें जो difference है that's 5. So common difference, therefore d is equal to 5 and the first term is 105. अब क्या करना है? Sum निकालना है. What's the last term? Last term is 995. हमें निकालना है इन टर्म्स का सम। कितनी टर्म्स है ये? तो वो हमें नहीं पता है, पहले हम सबसे पहले n निकालेंगे। n means the number of terms. So L is nth term, which is 995. The nth term is a plus n minus 1 into d is 995. A is what? 105 plus n minus 1. D is what? 5 is equal to 995. अब 105 को राइट साइड लेकर जाओ। It's n minus 1 into 5 is equal to 995 minus 105, which gives us n minus 1 into 5 is equal to 890. तो यहां से हमें n का वैल्यू मिलेगा। It's 890 divided by 5, which gives us n minus 1 is equal to 890 divided by कितना बनेगा? 5 ones are 5, यहां से बचे 3, 5 7 are 35, ठीक है, बचे 4, 5 8 are बराबर होगा। So n is equal to 178 plus 1 is 179. जरा बताओ आप 100 से लेकर 1000 तक excluding these two, how many terms? 179. How many terms are there? 179. तो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है? 179. Therefore, sum of n terms is n by 2 into a plus l. आसान सा फॉर्मूला है, 10th में भी पढ़ा है। n is 179 terms का sum. It's 179 divided by 2. The first term is 105. The last term is 995. 105 plus 995, which gives us 179 divided by 2. It is वो तो कोई 1000 and 1100 ना, है ना? So it is 179. 2 ones are 2550. So it was ना काश 98450. 98450 is this 98450. ठीक है गुरु। तो ये किन का सम है? The sum of the numbers lying between 100 and 1000, which are multiples of 5, the sum is 98450. So now, question number 3. यहां पे लिखा है आपके पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म 2 है, ठीक है, और द क्वेश्चन है कि पहली जो 5 टर्म्स है, द सम ऑफ दोस 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो हम ऐसा करते हैं, लेट अच्छा इन एन एपी
in an AP, first term is 2, that is A is equal to. अच्छा, इससे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट A be the first term, let A क्या है, first term, and D be the common difference. ये जो कर है, D be the common difference of an AP. कोई AP है जिसमें हमने लेट किया A फर्स्ट टर्म है एंड D कॉमन डिफरेंस. A is the first term and D is the common difference of an arithmetic progression. So in an AP, first term is 2, that is A is equal to, और D हमें नहीं पता, ठीक है, D is given. Therefore, the arithmetic progression is, arithmetic progression तो given है नहीं, लेकिन arithmetic progression ऐसे होती है, A फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म क्या है, याद है, A प्लस D. जनरल टर्म से A प्लस n माइनस 1D. जनरल टर्म इज A प्लस n माइनस 1D. Therefore, अगर हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल n का वैल्यू 3 है, तो थर्ड टर्म इज A प्लस 3 माइनस 1, दैट इज 2D. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट टर्म इज A, सेकंड टर्म इज A प्लस D, थर्ड टर्म इज A प्लस 2D, फोर्थ, तो ऐसे ही चलेंगे आगे. 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D, A plus 9D, यहां तक आगे 10 तक, ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of sum of next 5 terms. Sum of first 5 terms is 1/4 of sum of next 5 terms. जरा बताओ पहली 5 टर्म्स क्या क्या है? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D, A plus 4D तक आ गए ना 5. 1 2, देखो ये 1 2 3 4 5, which is equal to 1/4 of next 5 terms. तो नेक्स्ट कहां से शुरू होगा? 5 से. A plus 5D, A plus 6D, A plus 7D, A plus 8D, A plus 9D. इतना समझ आया? बताओ कितने A है? 1 2 3 4 5, 5 है. D कितने आएंगे? 4 3 7 2 9 है. This is 10. Okay, it's 1/4 of. How many A's are there? 5 again. 5 A. नहीं समझे? समझ आओ तो अब काउंट करो. ये 6 और 5 हो गए 11, 11 और 7 35 है वो. So it's 35D. क्लियर? अभी यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे. इट्स 4 5 are 20A, 4 10 40D is equal to 5A plus 35D. ठीक है? अभी ये 20 में से 5 निकालो तो 15A, 40D में से 35 निकालो तो 5D is equal 0. इसमें से कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, which implies 5 common. What's remaining? 3A plus D is equal 0. 5 जाएगा 0 के साथ. 3A plus D is equal 0. अच्छा, A का वैल्यू क्या है? 2. It's 3 and 2 plus D is equal 0. So D is equal to -6. अभी मेरे पास A और D है ना, तो हम कोई भी चीज निकाल सकते हैं. जनरल टर्म निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं. अब जरा क्वेश्चन बताओ, प्रूव क्या करना है? 20 तो फिर करना है वेरीफाई. क्या 20th टर्म -112 है? हम चेक करते हैं. नाउ 20th टर्म
is equal to a plus n minus, sorry, 19. a plus 19d. What's a? 2. A is 2 plus 19 into d is minus. Minus. अगर आंसर -112 आ गया तो वेरीफाई हो गया, अगर नहीं तो फिर वो रॉन्ग है, ठीक है। जरा बताओ, -112 ये कितना है? -112 ये को तशी -114. -114, so the answer is -112, hence verified। अब बताओ 20th टर्म क्या आ गई? -112. यही तो हमें वेरीफाई करना, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, the AP is question number 4। The arithmetic progression is, देखो ये सारा arithmetic progression जो है ये इनके इर्द गिर्द घूमता है, यहां पे यमश इस्तेमाल कर सकते। अगर कौन चीज काढून आस गिवन आस वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। बस ये 3 चीजें आपको याद रखो। कभी ए और डी गिवन होते हैं, एन निकालना होता है, ठीक है। कभी सम गिवन होता है, इसके लिए एन चाहिए, ए चाहिए, एल चाहिए, डी चाहिए, बस यही 3 चीजें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जरा बताओ क्या है? -6, -6, -5, so on। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर गिवन ना हो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा गिवन किए, फिर आप क्या करोगे? लेट करोगे ए और डी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन हो तब भी आप सबसे पहले क्या करोगे? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाला करोगे। तो इस एपी में से व्हाट इज फर्स्ट टर्म? -6। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? इट इज -11। यहां पे कॉमन डिफरेंस इज -11/2, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट बिकम्स +6, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, so which implies -11/2 plus 6, which gives us 12 minus 11, it's 1/2, clear? So D is equal to 1/2। अभी पढ़ो क्वेश्चन करना क्या है। कितनी ऐसी टर्म्स को हम सम करेंगे जिनका सम कितना आएगा? -25। कितनी टर्म्स को सम करेंगे जो सम -25 आएगा? अभी नहीं पता है ना। देखो वही टर्म्स हमें काउंट करनी है, तो हम ऐसे करेंगे, लेट सम ऑफ n टर्म्स। मैंने लेट किया ना, कितनी टर्म्स का सम? n टर्म्स का सम कितना है? -25। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स के लिए 2 फार्मूला है, एक है n/2 2a plus n-1d। ये तब इस्तेमाल होता है जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों गिवन हो लेकिन लास्ट टर्म हमें नहीं पता है। और ये कब इस्तेमाल होता है? जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें हो, लेकिन हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, तो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? पहला वाला। सो सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a plus n-1 into d। देखो कॉमन सेंस ये है कि जब आपके पास 3 चीजें हो, n, a और d, इनमें से अगर 2 पता है, तीसरा खुद ब खुद पता चलेगा। So it is n into 2, what's a? A is -6, 2 into -6 plus n-1, d is 1/2। and ये 2 मैंने नहीं लिखा, ये जाएगा मल्टीपल में यहां, it's -50। ये -25 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद -50 बनेगा। क्लियर? Yes, sir. बस यही से क्वेश्चन है, n का वैल्यू यही समझेगा। It's n into -12 plus n-1/2 is equal to -50। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना। So it is n 2 into -12 is -24 plus n-1 divided by 2 is equal to -50। ठीक है। So n into n-25 है ना, n-25 -24 और -1 -25 is equal 2 into 50 is -100। ओके, अभी इसको करेंगे n² -25 n, ये इधर आके +100 बनेगा, इज इक्वल 0। अभी इसको करेंगे फैक्टराइज, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। इट्स 20n - 5n हो गया, -25 है,
20 into 5 is 100 plus 100 is equal to 0. इनमें से कॉमन क्या है? n. तो बचा क्या? n minus 20. इनमें से कॉमन क्या है? -5. तो बचा क्या? यही तो होगा n minus 20. ये n plus 20 अगर आए तो गलत है. So it's n minus 20 into n minus 5 is equal 0. So either, therefore, we'll have to solve n is equal 20 or 5. या तो 20 टर्म्स का सम भी सेम आएगा और 5 टर्म्स का सम भी यही आएगा. अगर आप 20 टर्म्स को सम करोगे तो यही -25 आएगा. अगर आप 5 टर्म्स को सम करोगे तो सेम सम आएगा. ठीक है, समझ आएगा? So therefore sum of 20 or 5 terms is -25. Question number 5. देखो सबसे पहले हम करेंगे लेट A be the first term and D be the common difference of an AB. Let A be the first term and D be the common difference of an arithmetic progression. अब given है, it is given that pth term is 1 by q. It is given that pth term, ऐसे लिखते हैं ना, pth term is 1 by q and qth term is 1 by p. फिर फिर क्या करना है? Then sum of pq terms is half of pq plus 1. ठीक है, देखो सम निकालने के लिए हमें a और d पता होना चाहिए. तो सम ऑफ pq टर्म्स हमें प्रूव करना है, ये इसके बराबर. फिलहाल यहां से चलते हैं, यहां से क्या मिलेगा हमें वो चेक करते हैं. AP we must be फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस है नहीं. pth term is 1 by q, so pth term means a plus p minus 1d. Tisha is equal to 1 by q. And qth term is a plus q minus 1d is equal to 1 by p. अब हमें बेसिकली चाहिए क्या, वो हम चेक करते हैं. देखो हमें चाहिए सम ऑफ पी क्यू टर्म्स. सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर है? पहले क्वेश्चन को देखते हैं, हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. सम ऑफ एन टर्म्स किसके बराबर है? n by 2 2a plus n minus 1d. क्योंकि यहां लास्ट टर्म नहीं है, यहां पे बात हो रही है a और d. ठीक, तो हमने ये इस्तेमाल किया. अच्छा मुझे बताओ सम ऑफ पी क्यू टर्म्स क्या होगा? n की जगह क्या आया? पी क्यू. इट्स पी क्यू डिवाइडेड बाई 2a प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी. अभी हमें दो चीजें चाहिए, क्या क्या? a और d. अगर हमें यहां से a और d पता चलता है तो हम वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी गेट आंसर. फिलहाल इसको लेते हैं फर्स्ट और इसको लेते हैं सेकंड. जब भी हमारे पास दो इक्वेशन होती है ना, हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक, ताकि हमें दो चीजों का वैल्यू मिले. किस किसका? a और b का. फिलहाल हम इन्हीं पे फोकस कर रहे हैं. सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड. कैसे करेंगे? देखो वेरिएबल सेम है, मतलब a और a दोनों के कोएफिशिएंट सेम है. अब हम सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम फर्स्ट. सबट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. जरा फर्स्ट क्या है? a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी. ये फर्स्ट है. सबट्रैक्ट करेंगे सेकंड में, सेकंड से. अच्छा राइट साइड पे 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी. इज दैट क्लियर? यहां से हमें एक वैल्यू मिलेगा या a या d. इट्स a प्लस p माइनस 1 d माइनस a माइनस q माइनस 1 d इज इक्वल p माइनस q डिवाइडेड बाई पी क्यू. a और a कैंसल. इट्स p माइनस 1
माइनस क्यू माइनस 1d। जरा बताओ मैंने क्या किया, डी कॉमन, इसमें से और इसमें से d को कॉमन निकाला, इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। यहां से p माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू p माइनस, अच्छा बाहर d भी है, d इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। फिलहाल ये और ये कैंसिल, बचा क्या, पी माइनस क्यू, यहां पर लिखते हैं, बचा p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अभी क्या होगा, पी क्यू कैंसिल ही होगा डायरेक्टली, सो डी इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। मिला हमें यहां से कॉमन डिफरेंस। अब इस डी को हम यूज करेंगे आइदर इन फर्स्ट और इन सेकेंड। यूज वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, यहां पे करते हैं, वी गेट यूज वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, वी गेट ए की जगह, ए तो ए ही है, प्लस पी माइनस 1 इंटू 1 बाई पी क्यू, इंटू डी की जगह 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। यहां से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या ऐसे करते हैं, ए प्लस पी 1 जार पी बाई पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1 बाई क्यू। यहां से क्या कैंसिल होगा, अच्छा एक काम करते हैं, हाँ इस टर्म को ही उधर शिफ्ट करते हैं, 1 बाई क्यू माइनस पी माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी क्यू। नहीं समझे, यहां समझ आया क्या किया? अच्छा, अब पी क्यू जो है एलसीएम लेते हैं, आता है ना एलसीएम, यस सर, पी क्यू एलसीएम लिया, यहां पे क्या है क्यू, क्यू, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी ऑनली। यस सर, नहीं समझे, यस सर, पता है, माइनस यहां पे पी क्यू है, यहां पे पी क्यू है, तो पी क्यू ही एलसीएम लिया, तो ऊपर बचेगा पी माइनस 1 एज यूजुअल जैसे। तो कुल मिला के ए का वैल्यू आएगा माइनस और माइनस प्लस 1 बाई पी क्यू, क्योंकि पी कैंसिल हो जाएगा, पी माइनस पी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 बाई पी क्यू। तो ए भी 1 बाई पी क्यू, डी भी 1 बाई पी क्यू। देयरफॉर हमें चाहिए सम ऑफ एन टर्म्स होता है n बाई 2 into 2a plus n minus 1 into d. So sum of pq terms is equal to pq by 2. 2a is what? 1 by pq plus n is pq, है ना, n pq minus 1d is 1 by pq. So sum of pq terms is equal to pq by 2. What's common? pq. What's remaining? 2 plus pq minus 1, ये और ये कैंसल, 2 तो कैसे कैंसल, नहीं, इट्स 1 बाई 2। सबसे पहले pq, 2 में से 1 निकालो तो 1 बचेगा, हेंस प्रूव। यही देखना था, ठीक। 10 क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो जब, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन नहीं है, तो हम करेंगे लेट ए एंड डी। ए और डी क्या क्या होता है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए बी। लेट किया हमने कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है वो ए एंड डी है। इट्स गिवन दैट, गिवन है सम ऑफ पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी। नहीं समझे, गिवन दैट सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर p टर्म्स मतलब 10 टर्म्स का सम 20 टर्म्स के बराबर है। क्लियर? तो सम ऑफ p टर्म्स किसके बराबर होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज n बाई 2 मतलब p बाई 2, 2a प्लस p माइनस 1d
is equal sum of q terms is q by 2 2a plus ये ना फॉर्मूला सम ऑफ p टर्म्स एंड सम ऑफ q टर्म्स। अच्छा ये हो गया गिवन, हमें निकालना है देन फाइंड सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। क्या निकालना है? p प्लस q टर्म्स का सम निकालना है। जरा बताओ सम ऑफ p प्लस q टर्म्स क्या होगा? p प्लस q by 2 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d। नहीं समझे? सम ऑफ p प्लस q, सुनो अभी तो सम ऑफ p प्लस सम ऑफ p प्लस q टर्म्स मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसके लिए आपको चाहिए a एंड d। क्या चाहिए? अब p और q की वैल्यूज तो आपको पता है नहीं, आपको चाहिए कोई भी सम निकालने के लिए दो चीजें चाहिए a एंड d। अगर आपको निकालना होगा ना सम ऑफ n टर्म्स विच इज n by 2 2a प्लस n माइनस 1d, उसके लिए n तो गिवन होगा। अब n इस बार गिवन क्या है? p प्लस q। अभी आपको क्या क्या चाहिए? a एंड d। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। फिलहाल ये और ये कट, इट्स 2ap प्लस pd p माइनस 1 2aq प्लस qd q माइनस 1। गॉट इट? विच इज इक्वल 2ap, इसको इधर शिफ्ट करो 2aq, ठीक है इतना, प्लस ये p d p माइनस 1, इसको इधर लेकर आओ q d q माइनस 1 इज इक्वल 0। आपने कंसंट्रेट करना है, हमें a और d चाहिए। क्या चाहिए? a और d। अब यहां से आपको कॉमन मिलेगा 2a, व्हाट्स रिमेनिंग? p माइनस q। अब यहां से कॉमन निकालो d, d कॉमन है। अब d छोड़ के क्या बचा? d इंटू p माइनस 1, p इंटू p इज p स्क्वायर माइनस p माइनस q इंटू q इज q स्क्वायर माइनस माइनस प्लस q वन आर q। यू गॉट इट? इट्स 2a p माइनस q। अब यहां जाना p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर एक जगह पे लिखते हैं, माइनस p प्लस q एंड d इज इक्वल 0। इट्स 2a p माइनस q, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b इंटू a प्लस b। यहां से माइनस कॉमन निकालो तो p माइनस q बचेगा। आपको समझ आया? यहां पे समझ आया? माइनस कॉमन निकाला तो बचा p माइनस q। अब यहां भी p माइनस q, यहां भी p माइनस q, p माइनस q बाहर, इट्स 2a p माइनस q। इनमें से p माइनस q बाहर, अंदर से क्या बचा? p प्लस q और माइनस 1। यहां पे 1 बचा ना, जब p माइनस q बाहर निकाला बचा क्या वहां पे? 1। तो p प्लस q माइनस 1, साथ में d इज इक्वल। अभी बताओ और क्या कॉमन है? p माइनस q कॉमन है, p माइनस q इज इनटू 2a, यहां पे बचा, यहां पे बचा p माइनस q p प्लस q p प्लस q माइनस 1 इंटू d इज इक्वल 0। अभी हमारे पास दो फैक्टर्स है, दिस एंड दिस। तो हम ऐसा करेंगे, इधर p माइनस q इज इक्वल 0 विच गिव्स अस p इज इक्वल टू q। ठीक है, p इज इक्वल टू q। हाँ ये तो कॉमन सेंस है, अगर p q के बराबर होगा तो सम तो बराबर होगा ही होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। और दिस इज इक्वल 0। कौन? 2a इंटू p प्लस q माइनस 1d इज इक्वल 0। एक शब्द। अभी देखो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। आपने निकालना है सम ऑफ p प्लस q टर्म्स। किसके बराबर है? p प्लस q बाई 2 इंटू 2a
प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अभी आप मत निकालो डी और ए का वैल्यू, आप डायरेक्टली इसको सब्स्टिट्यूट करो। ये 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अगर ये 0 के बराबर है तो यहां सब्स्टिट्यूट करो। इसका नाम रखा आप फर्स्ट। ना हमने डी निकालने की जरूरत है ना ए निकालने की जरूरत है, तो हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, वी नो दैट नाउ सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स इज दिस, therefore sum of p plus q terms is p plus q divided by 2 into 0 from equation first। therefore sum of p plus q terms का sum, जब आप इतनी टर्म्स का सम करोगे ना, मतलब 30 टर्म्स, सपोज सम ऑफ 10 टर्म्स और सम ऑफ 20 टर्म्स बराबर है। जब आप 30 टर्म्स का सम करोगे ना, तब तक सम कितना आ जाएगा? 0। मतलब इसमें कुछ टर्म्स प्लस है, कुछ टर्म्स माइनस है, कुछ फ्रैक्शन है, तो लास्ट में सम हमें मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्या ये पॉसिबल है जब आप बहुत सारे टर्म्स को सम करोगे तो सम 0 आएगा? आप सिर्फ नेचुरल का सोचते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सिर्फ 1 प्लस 2, ये तो अरिथमेटिक है, इसमें कोई भी सीक्वेंस हो, बस कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। तो जब आप कुछ टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स को सम करोगे ना, तो सम क्या आएगा? इज दैट क्लियर? से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है -3 0 3। इज दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कॉमन डिफरेंस है ना? जरा इन 3 टर्म्स को सम करो, -3 प्लस 0 प्लस 3, सम तो 0 आएगा। यहां से आपको ये पता चला कि पॉसिबिलिटी है, ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है जिसका सम क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे आप 1000 टर्म्स का सम करो, मे बी 1000 टर्म्स के बाद सम करने के बाद सम 0 आएगा। क्लियर? इसको रिपीट करना है। तो आपके पास एक एपी है, उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने लेट किया ए एंड डी। सम ऑफ पी एंड सम ऑफ क्यू, ये पॉसिबल होता है कि एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डिफरेंट टर्म्स का सम बराबर हो सकता है। तो ये हमने यहां से निकाला ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को हमने सब्स्टिट्यूट किया यहां पे, वी गेट द आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 11 इज in an AP sum of P, Q and R। जब आप इन टर्म्स को सम करोगे, सम ऑफ P टर्म्स आएगा A, कोई वैल्यू होगा ना, सम ऑफ Q टर्म्स आएगा B और सम ऑफ R टर्म्स होगा C। फिर हमें कुछ प्रूव करना है, वो अभी पता चलेगा। फिलहाल हमारे पास है, लेट करेंगे A एंड D, क्या क्या है? बी द कॉमन डिफरेंस, sorry, be the first term and common difference। ये क्या लिखा मैंने? common difference of an AP। अब given क्या है? given that sum of P terms is A। what is sum of P terms? P by 2 2a plus p minus 1d is equal to a, यहां ध्यान रखो, which gives us 2a plus p minus 1d। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पे a क्वेश्चन में भी गिवन है, सम ऑफ p टर्म्स इज इक्वल टू a, तो a हम फर्स्ट टर्म नहीं लेंगे, हम a1 लेंगे फर्स्ट टर्म, ताकि ये दो चीजें डिफरेंशिएट हो जाए। ये a1 फर्स्ट टर्म कोई अलग चीज है, सपोज 7, और ये सम इनका है 30, तो अब 13 और 7 तो बराबर है नहीं, इसीलिए फर्स्ट टर्म को हमने लेट किया A1, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी A आ रहा है, तो इन दो को डिफरेंशिएट करने के लिए ये A1 है और ये A ही है, तो इसका हमने रखा A1, या कैपिटल A भी रख सकते। ओके, कैपिटल A ही रखिए, ज्यादा आसान होगा। सो लेट A, कैपिटल A be the first term and D be the common difference of an arithmetic progression। Given that sum of P terms is A, so P terms is P by 2, 2A plus P minus 1D is equal to A, so 2A plus P minus 1D is equal to 2A divided by P। हमें कुछ प्रूव करना है, उसके लिए हम कर रहे हैं सब कुछ। तो ये फिलहाल फर्स्ट है। अभी बताओ और क्या गिवन है? सम ऑफ P terms is A and sum of Q terms is B। सम ऑफ Q टर्म्स किसके बराबर है? Q by 2 2a plus Q minus 1d
इज इक्वल टू बी। आपको समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां से निकालेंगे फिर से 2a q माइनस 1d इज इक्वल 2b डिवाइडेड बाई q। यहां हमने निकाला सेकेंड इक्वेशन। ऑल्सो सम ऑफ p q r terms is c, sum of r terms is r by 2, 2a plus r minus 1d is equal to c. So therefore 2a plus r minus 1d is equal to 2c divided by r. अभी देखो इस क्वेश्चन को करना कैसा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर मतलब सीक्वेंस और सीरीज में क्वेश्चन एंट्रेंस में भी आते हैं, ठीक है। इसमें दो ही चीजें हैं, हम किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या तो जनरल टर्म या सम। फॉर्मूला सिर्फ दो ही, लेकिन क्वेश्चन को आपने अंडरस्टैंड करना है। फिलहाल गिवन है हमारे पास सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ आर टर्म, इट्स गिवन। अब आगे चलते हैं, अब कुछ प्रूव करना है। जरा बताओ क्या प्रूव करना है? A by P, हाँ, A by P, a by p Q minus R, q माइनस r, plus b by q R minus Q, r माइनस P, p, c by r P minus Q. p माइनस q। देखो इधर a b c, यहां देखो a b c p q r, a के साथ p, b के साथ q, c के साथ r। अच्छा p q r, q r p, r p q, सारे आ रहे हैं ना? एक पैटर्न है वहां पे। किसके बराबर दिखाना है? 0 के बराबर। तो ये तू ध्यान दो, ये थर्ड है। हम करेंगे ऐसे, सबट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट में से सेकंड को आप सबट्रैक्ट करो, मतलब 2a प्लस दिस, इसमें से ये सबट्रैक्ट करो, 2a प्लस p माइनस 1d, ये इसमें से आप ये सबट्रैक्ट करो, माइनस 2a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल 2a बाई p, माइनस करना है 2b बाई q, 2a बाई p माइनस 2b बाई q। सबट्रैक्ट करने के बाद आपको मिलेगा 2a माइनस 2a कैंसल, व्हाट्स रिमेनिंग? P minus 1, p माइनस 1b माइनस q माइनस 1b इज इक्वल टू 2a बाई p माइनस 2b बाई q। इतना ठीक है? चलो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2aq माइनस 2bp डिवाइडेड बाई p। अभी हम यहां से निकालेंगे d का वैल्यू, d कॉमन, व्हाट्स रिमेनिंग? p माइनस 1 माइनस q प्लस 1। ठीक, समझ आ रहा है? Yes, sir. इज इक्वल टू 2aq 2bq डिवाइडेड बाई pq, 1 कैंसल। सो d इज इक्वल, d के साथ क्या बचा? P minus Q, p माइनस क्यू को शिफ्ट करेंगे यहां पर। सो इट्स d इज इक्वल 2aq 2b p है यहां पे, डिवाइड बाई pq, और साथ में जो d के साथ p माइनस क्यू है वो भी हम यहां लेकर आए, p माइनस क्यू। ये रखो आप 4। इन चीजों का ख्याल रखना, देखो मिस्टेक होता है। देन अगेन अभी थर्ड और सेकंड को सबट्रैक्ट करेंगे, इसमें से d का वैल्यू निकालेंगे। अगेन सबट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो थर्ड और सेकंड को सबट्रैक्ट करने के बाद 2a और ये सबट्रैक्ट करो, 2a प्लस q माइनस 1d सबट्रैक्ट विद 2a प्लस r माइनस 1d इज इक्वल, अब राइट को भी सबट्रैक्ट करो, 2b बाई क्यू 2c बाई r, 2b बाई क्यू 2c बाई r। अभी यहां से 2a माइनस 2a कैंसल, व्हाट्स रिमेनिंग? Q minus 1,
Q minus 1D minus R minus 1D is equal to 2BR minus 2CQ divided by QR. D कॉमन निकालने के बाद देखो क्या क्या बचा, Q minus 1 minus R plus 1, यहां ध्यान रखना, is equal to 2BR 2CQ divided by QR. 1 और 1 कैंसिल, सेम रहेगा. D is equal to 2BR minus 2CQ divided by QR. अब इसके साथ Q minus R, ये क्या है, फिफ्थ है. अब 4 और 5 दोनों तो कॉमन डिफरेंस ही है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो नहीं एक ही है, तो कॉमन डिफरेंस अगर यहां पे सपोज ये वैल्यू आ रहा है 100, तो ये कितना होगा, 100 ही होगा. तो इक्वेट करने के बाद ये दो तो बेसिकली सेम है. गॉट इट? अब आगे चलते हैं. देखो क्या करना है, इक्वेटिंग या कंपेयरिंग. कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. इक्वेशन 4 और 5 को कंपेयर करेंगे. यहां देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करेंगे तो 4 है ये 2AQ minus 2BP divided by PQ into P minus Q, एक साइड, which is equal to 2BR minus 2CQ divided by QR into Q minus R. अभी दोनों साइड से देखो, न्यूमरेटर में 2 कॉमन है कि नहीं है? यहां से न्यूमरेटर में 2 कॉमन, वहां से न्यूमरेटर में 2 कॉमन, 2 कैंसल. नहीं समझे? अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या सेम है, Q और Q. बात समझ में आ रही है? अब बताओ क्या करेंगे, यहां से जब 2 कॉमन ले लोगे 2 बाहर, यहां से 2 कॉमन ले लोगे 2 बाहर, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ व्हाट्स रिमेनिंग, यहां से लिखो, यहां से लिखो. अब बचा AQ माइनस BQ डिवाइड बाई P इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू BR माइनस CQ डिवाइड बाई R इंटू Q माइनस R. ठीक, अभी ये इधर लेकर आओ, AQ माइनस BQ है कि BP है, BP, यहां ध्यान रखा करो. AQ माइनस BP डिवाइडेड बाय, सॉरी, AQ माइनस BP इंटू R, यहां लिखो, एंड Q माइनस R. ठीक, एक बार. अब यहां से BR माइनस CQ P माइनस Q एंड P. अभी देखो क्या करेंगे, AQR ठीक है माइनस BPR, ये रखो ऐसे ही. PBR माइनस CPQ इंटू P माइनस Q. अभी देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय PQR, इससे डिवाइड करेंगे PQR से. तो जब आप डिवाइड करोगे ना, ऐसे करेंगे 1 बाई PQR इंटू AQR BPR Q माइनस R, 1 बाई PQR PBR CPQ इंटू P माइनस Q. अब ले लो फोटोग्राफ. अच्छा, ये 1 बाई PQR, अब इसको डिवाइड करो या इसको डिवाइड करो, ये दोनों को डिवाइड नहीं करना है. समझ आएगा? ये 2 है ना, 2 टर्म्स नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है.
अब आप पी क्यू आर यहां लिखो, इसके साथ जहां जरूरत है वही लिखो। पी क्यू आर हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको नहीं, ये दोनों को डिवाइड नहीं होगा। सपोज x माइनस वाई इंटू जेड माइनस पी, वजन का डिवाइड बाय 1/2। क्या मैं ऐसे लिखूं 1/2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1/2 जेड माइनस पी, मतलब इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, फिर तो ये 4 बच जाएगा, 2 टू 4। तो आपकी मर्जी है कहां पे डिवाइड करो। अब इसको यहां इनके साथ डिवाइड करेंगे, किस किस के साथ, ए क्यू आर डिवाइड बाय पी क्यू आर माइनस बी पी आर डिवाइड बाय पी क्यू आर, एक साथ में क्यू माइनस आर इज इक्वल, अब यहां से अब इज इक्वल, वहां भी ऐसा ही करेंगे, पी बी आर डिवाइड बाय पी क्यू आर माइनस सी पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू आर इंटू पी माइनस पी। बहुत आसान है वीडियो। अब यहां पे बताओ क्या क्या बचेगा, ए बाई बी माइनस बी बाई क्यू इंटू क्यू माइनस आर, राइट साइड पे P कैंसल, R कैंसल, B बाई क्यू माइनस यहां पे P और Q कैंसल, C बाई R इंटू P माइनस Q। अब ये A बाई P किसके साथ है, Q माइनस R। ये B बाई Q किसके साथ है, Q माइनस R। ये B बाई Q किसका है, P माइनस Q। ये C बाई R किसका है, P माइनस Q। अभी सबको एक साइड से लेकर आएंगे। अभी देखो ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू क्यू माइनस आर माइनस बी बाई क्यू बी माइनस क्यू प्लस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस, सी बाई आर बी माइनस क्यू। बचा क्या, यहां पे कॉमन है बी बाई क्यू, इट्स ए बाई पी क्यू माइनस आर। अब यहां से माइनस कॉमन और बी बाई क्यू कॉमन, चलो यही पे लिखते हैं, माइनस बी बाई क्यू कॉमन, व्हाट्स रिमाइनिंग क्यू माइनस आर, माइनस कॉमन है तो प्लस लिखेंगे ना, पी माइनस क्यू प्लस सी बाई आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल ए बाई पी क्यू माइनस आर माइनस बी बाई क्यू। यहां पे कुछ कैंसिल होगा, क्यू कैंसिल होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. बचेगा क्या, पी माइनस आर प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल, आंसर तो आ गया शायद, ये देखिए प्लस कैसे आएगा, हाँ प्लस आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। ये ए बाई पी हुआ क्यू माइनस आर, ये क्या है, ये प्लस बनेगा। अब ये माइनस कहां गया, ये माइनस अंदर मल्टीपल करो, जब मल्टीपल करोगे तो पहले आर आएगा फिर पी आएगा, नहीं समझ, माइनस और माइनस प्लस आर, माइनस और प्लस माइनस पी। अब बताओ आंसर आ गया नहीं आ गया, यही है,